Okay, so day 58, and today let's solve this best time to buy and sell stock part 4. So it's a good problem, like you can learn how to optimize your DPA with this, though this problem for some reason also gets accepted if you don't optimize it. You just apply tabulation, and if you can see, there are like it's an n square into k algorithm wala complexity wala code that I've submitted over here, and that also passed. So I don't know why, but the percentage would be very less, like it would be of high time complexity as compared to other solutions, but that also passes for some reason because it's a 1e8 max to max 1e8 tak jata hai. If you see n square into this k, that would go till 1e8, so that will pass in lead code, but it's better to learn the optimization क्योंकि अगर ये 1e4 या 1e5 होता तो नहीं पास होता वाला solution. So first of all, I solve this using tabulation. So तुम्हें थोड़ा recursion memoization का idea होना चाहिए. Try to solve this first using memoization and then read this code. Though I will also explain ki how tabulation works, unoptimized one, and then how you optimize that same tabulation. So what the question says is prices I दिया is the price of a given stock on the ith day and the integer k. Find the maximum profit you can achieve. You may complete at most k transactions. ठीक है. So similar to other buy time and sell stock problems, what we did is we maintained a DP, and what this DP represents is like IK, it's a two-dimensional DP, and DP IK represents answer till the ith subarray, like till the ith prefix and k transactions left. ठीक है. Now how do you solve this? ठीक है. So डिपेंडेंसी देखते पहले कि तुम्हारा स्टेट चेंज कैसे होगा एंड कब चेंज होगा, लाइक स्टेट मैनेजमेंट फर्स्ट वील सी. सो गिवन इन आई एंड के, यहाँ पे अज्यूम करो यू हैव आई एंड के, ठीक है. एंड आई एंड के तुम्हें पता है कि मैं भी आयत इंडेक्स पे हूँ और मेरे पास अपने राइट वाला सबअरे पूरा एक्सेसिबल है, एंड आई हैव ओनली के ट्रांजैक्शंस टू डू. So when you want to find the answer to that, what you'll do is you have two options. Either DP of ij will simply ignore and will not consider to buy at that particular day. So you won't buy at that day, and then you would just go ahead. Imagine kore memoization and how memoization is getting actually converted to tabulation. So DP ij becomes DP I plus 1j. ठीक है. First things first, simple कि तुमने कुछ नहीं लिया. Second thing is you decide कि तुम वहाँ से purchase करोगे. So एक बार इसे uncomment करके I'll explain. तो तुम डिसाइड करते हो कि तुम वहाँ पे परचेज करोगे. सो अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि यू आर गोइंग टू परचेज ऑन दैट डे, द सेकंड ऑप्शन यू हैव इज़ i+1 से लेकर एंड तक अभी डिसाइड करो कि तुम्हें सेल कहाँ पे करना है. लेट्स अज्यूम कि तुम्हें वो डे मिल गया जहाँ तुम्हें सेल करना है. लेट्स कॉल इट p. So when you'll be selling it, you'll be making a profit of prices of p minus prices of y, and then you can again start your purchase from dp of p, but now you have one less transaction, that is j minus 1. You know what I and j is, right? Like you are at the ith day and you have j transactions left. So when you find a day, तुमने अभी decide कर लिया कि मैं purchase करने वाला हूँ. So यहाँ पे है कि you would purchase, and यहाँ पे है कि you won't. ठीक है. तो लाइक इफ़ यू वोंट परचेज, यू वुड जस्ट गो हैड i+1 में चले जाओगे. अगर तुमने परचेज करने का डिसीजन लिया, यू वुड फाइंड दी डे जहाँ पे तुम सेल करोगे, दैट इज़ प्राइसेस ऑफ p माइनस प्राइसेस ऑफ y. जहाँ पे तुम सेल करोगे तुम्हें वो p डे मिल गया, एंड देन वहाँ से अगेन तुम अपना रिकर्जन चला दोगे. एक्चुअल में इन दिस केस इट इज़ dp. नाउ वाई यू वुड ऑलवेज हैव द आंसर टू dp ऑफ p j माइनस 1, बिकॉज हम बॉटम अप जा रहे हैं. Just because we are going bottom up, you would have the answer to this, and you can easily solve this, and you would just get the answer in the end. तो ये था फर्स्ट पार्ट. ठीक है, इतना पार्ट. बट वाई दिस वोंट वर्क इज़ तुम लोग ये एक एक्स्ट्रा लूप चला रहे हो. ना हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस? ऑप्टिमाइजिंग दिस इज़ फेयरली सिंपल. व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम अगर देखोगे यहाँ पे प्राइसेस ऑफ पी एंड डी पी ऑफ पी जे माइनस 1. सो इफ़ यू लुक एट क्लोजली, ये हम लोग अपने आगे का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे एक पर्टिकुलर चीज़ का. Now what's that maximum like what's that maximum value? So if you see क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रह रही है. प्राइसेस ऑफ p जो प्रीफिक्स में जा रहा है, अगेन dp ऑफ p ऑल्सो, एंड प्राइसेस ऑफ i जो है वो तो आउटर लूप में है. दिस i इज़ लाइक एट द आउटर लूप, तो ये तो ऐसा ही रहेगा यहाँ पे. ऑल वी कैन व्हाट वी कैन डिसाइड इज़ ये वाला जो पार्ट है ना, प्राइसेस ऑफ p और ये dp ऑफ p j माइनस 1, मैं इसको प्रीफिक्स ऑफ j माइनस 1 में मैनेज करके रख सकता हूँ. what my prefix of j minus 1 would indicate, like if I make something called map या कुछ भी मैं बना देता हूँ, and I maintain something called prefix of j minus 1, वो मेरे को बता देगा कि from the current I plus 1, from the current I plus 1 to n till n what's the maximum value of ले लो j का. ठीक है,
from I plus 1 till n, let's suppose we call the variable as j. What's the maximum value of prices of j plus dp of फिर ये सेम चीज़ जो p तुमने वहाँ लिखा है वो भी उस dp में आ जाएगा. सो dp ऑफ p एंड सॉरी dp ऑफ हम pref of j minus 1 डिसाइड कर रहे हैं, राइट. सो dp ऑफ we won't call it j. So prices till I plus 1 से लेकर n तक k elements, तो prices of k plus dp of k j minus 1, dp of k and j minus 1. ये वाली चीज़, मैं इस वाली चीज़ का ना हमेशा मैक्सिमम मेंटेन करके रखूँगा अपने पास, बिकॉज वही चीज़ तो यूज़ हो रही है यहाँ पे. इफ़ यू सी प्राइसेस ऑफ पी प्लस डी पी ऑफ पी जे माइनस 1, ये चीज़ मुझे बार बार यूज़ हो रही है. मुझे इसी चीज़ का अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा कि मेरे आगे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड जे माइनस 1 तो वैसे भी यहाँ बाहर है, सो आई कैन ईजीली गेट द वैल्यू. कि मुझे बस इतना जानना है कि तुम मेरे को बता दो कि आई प्लस 1 से लेकर एन तक व्हाट द मैक्सिमम व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग गिवन यू हैव j माइनस 1. बिकॉज इसको ध्यान से देखना कि तुम्हें किसको प्रीफिक्स में लेना है, कौन सी चीज़ वहीं पे रहेगी, एंड प्रीफिक्स किसके लिए बनाना है, व्हाट्स दी रूट जिसके लिए तुम प्रीफिक्स बनाओगे. तो यहाँ पे तुम j माइनस 1 के लिए प्रीफिक्स बनाओगे, एंड ये वाला p जो सेम रह रहा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. सो एक बार देखते कैसे किया ये, ठीक है. सो इफ़ यू सी नाउ, मैंने क्या डिसाइड किया था ना कि मैं, क्योंकि j माइनस 1 तो वैसे ही रहने वाला है, अभी प्रेफ ऑफ j माइनस 1, तो मैंने बोला मैं ये वाला डेटा dp ऑफ एन जे माइनस 1 में डाल दूंगा. ना इफ़ यू सी मेरा ये पूरा वाला कोड गॉट कन्वर्टेड इनटू, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, अभी लूप नहीं चल रहा है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में मुझे मैक्सिमम चीज़ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. मुझे फॉर लूप चलाने का नीड नहीं है अभी. एंड इफ़ यू सी माई माइनस प्राइसेस आई स्टेज लाइक दैट ओनली, एंड आंसर तो मैं वापस कैलकुलेट कर ही रहा हूँ. अब ये डी पी ऑफ एन जे माइनस 1 कैलकुलेट कैसे हो रहा है, एक बार अज्यूम कर लो तुमने तुम्हारे कैलकुलेशन हो गया, देन आई एम अगेन इटरेटिंग ओवर द जेस, क्योंकि वो वाली चीज़ वहाँ पे आ रही है, राइट. वो वाली चीज़ तो मैं रिक्वायर्ड है, उसके लिए डी पी बना है. देन आई एम इटरेटिंग ओवर दैट जे, एंड मैं अपना डी पी ऑफ एन जे हमेशा मैक्स सेट कर रहा हूँ. एंड मैं किससे मैक्स सेट कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे को ऐसे बार बार लूप करके लानी पड़ रही थी ना, ये प्राइसेस ऑफ पी एंड डी पी ऑफ पी, ये वाला पार्ट, मैं हमेशा उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी डी पी ऑफ फॉर दैट जे उसके nth उसके nth इंडेक्स में स्टोर करके रख रहा हूँ. एंड डी पी ऑफ तुम्हें n0 भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम जे एक्चुअल में 1 से स्टार्ट करो, तो n0 का भी अपडेट नहीं होगा. सो बेसिकली n0 इज जस्ट द सफिक्स मैक्सिमम एलिमेंट, तो वो तो मैक्स ही स्टोर हो रहा है, सॉरी वो तो मैक्स ही स्टोर हो रहा है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज स्टोरिंग. मेरे डी पी ऑफ एन जे में हमेशा सफिक्स का मैक्सिमम रहेगा. एंड वाई आई नीड दैट मैक्सिमम, क्योंकि मुझे फॉर लूप अवॉइड करना था. टू अवॉइड दैट फॉर लूप मुझे ये वाला डेटा अपने सफिक्स के मैक्सिमम में स्टोर करके रखना था. दैट्स द ऑप्टिमाइजेशन वी डिड ओवर हियर. इन द एंड यू आर एनीवे स्टोरिंग द मैक्स, जस्ट सिंपली रिटर्न दैट आंसर. सो एक बार इसका मेमोराइजेशन लिखना, देन कन्वर्ट दैट इनटू टैबुलेशन, देन जस्ट थिंक कि हाउ यू कैन कन्वर्ट ये वाला जो डेटा है ना इनटू like a non-for loop solution. You don't want that for loop to happen. So if you don't want that for loop, you would be storing this prices p and dpp somewhere in your code, right? And that's what we did. हमने nj, you have many ways. You can either store it in a map. What I did is हमने 2D dimension में store कर दिया dp of nj minus 1, and then we always made sure that कि dp of nj में जो है वो उसमें हमेशा उस पर्टिकुलर jth के लिए मैक्सिमम वैल्यू ही स्टोर्ड रहे. क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ j माइनस 1 नहीं बदल रहा है बार बार इस वाले लूप में, तो मुझे j माइनस 1 द थिंग इज़ कि मुझे तुम्हें j माइनस 1 देना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर. मैं बस तुम्हें j माइनस 1 दे रहा हूँ एंड तुम्हें n दे रहा हूँ, एंड यू आर गिविंग मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फॉर लूप जो तुम्हें देता. ठीक है, दैट्स इट. थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, जस्ट गो स्लोली. फर्स्ट मेमोराइजेशन, देन टैबुलेशन, एंड देन द ऑप्टिमाइजेशन, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.